Good morning, everyone. Welcome to my channel. Welcome back. If you are new here, go hit the like and subscribe button. Share as much as possible. In this video, we are going to study C Sharp from basic to advanced. This is a one-stop solution. You don't have to go any other places. Just see the video and we will able to solve any type of coding questions regarding C Sharp. So, what is C Sharp? Why do we prefer it over other programming languages? Why to use C Sharp? See, uh, the thing is, it has a root from C family. From name we can understand C Sharp. So it has something with C family. It has a root with C family, and this language is as popular as Java, Python, any other languages. Okay, so C sharp. The first point is, let's see why C sharp. It is an object oriented programming language. It is an object oriented programming language created by Microsoft. Created by Microsoft, and it runs on .NET framework. .NET framework. So these are the things that are generally asked question. What is C sharp? Why do we use? So first thing, this language support object oriented programming. OOPS concept. This language support generally OOPS concept like Java. The second thing is it is created by Microsoft, so it has very strong foundation. It has very strong backup. Microsoft like company, so advertising or anything will be much easier for this language. And the third thing is it runs on .NET framework. So we will see in some time what is .NET framework. The second thing is why do which purpose we use C sharp. First, to make some mobile apps. Second, desktop apps. This is very best for desktop applications. And the third thing is like web applications. Sorry, this is generally generally lots of people are using this language to make web apps. Games like lots of games like PUBG. It has a lot of to do with C sharp, BGMI or PUBG. See, now it is easy to learn. Why do we use, let's say, second point? It is easy to learn. Second thing, simple to use, and it has a huge community support because it is open source language, so it has a huge community support. So first, let's get started. So we need an IDE. IDE. So we are going to use Visual Studio. So we are going to use Visual Studio. So let's meet there. So now we are going to see how to let's run our first program in C sharp. So this is the ID that we are going to use Visual Studio Code, and when you guys will open Visual Studio Code, then go for continue without code. There will be an option at right.
continue without code, so go and click on that. Then something like this, जैसा ये पेज है वैसा तुम्हें कुछ ओपन होगा. सो अब जो है, अब हम लोग बहुत ध्यान से स्टेप्स को देखेंगे. सो जैसे ही तुम लोग ये पेज पे आ जाओ, सो गो टू द फाइल. फाइल में जाके प्रोजेक्ट, फाइल में जाके हमें क्या करनी है, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करनी है. एंड देन we will going to choose console application. So here we will make our first console application. It is very easy to make this, so let's choose console application. यही हम लोग अभी बनाने वाले हैं. So इस वाले होम पेज का, इस वाले का थोड़ा सा लेआउट समझते हैं. यहाँ पे बहुत सारे रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं. जैसे कि मैंने इसमें से कुछ कुछ मैंने कर रखा है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट सारे ही मैंने कर रखे हैं. सो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ऑल लैंग्वेज कर सकते हैं, बट सिंस दिस वीडियो इज फॉर सी शार्प, हम लोग यहाँ पे सी शार्प, यहाँ से तुम लोग लैंग्वेज चूज कर लेना. प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, एंड्रॉयड, एज्योर, आईओएस, लिनक्स, मैक ओएस, टीवी ओएस, विंडोज. तो हम लोग चूज करेंगे विंडोज. प्रोजेक्ट टाइप, बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइप है, इसमें से हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट we will choose all project type. So let's make our first console application. Select the console application and see here the next button is here. Go and click on next and give it name. Name something like name like first console app. First console app. This is F. Here सबसे पहले हम लोग देंगे प्रोजेक्ट का नाम, फिर हम लोग लोकेशन चूज करेंगे. लोकेशन जैसे कि मैंने ये कर रखा है, तो तुम लोग भी इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग लोकेशन को. सेकेंड, यहाँ पे क्रिएट अ सॉल्यूशन. क्रिएट अ सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऑलरेडी इफ यू हैव अ सॉल्यूशन देन यू कैन add this to that solution, but now we are going to create a new solution. And at last हम लोग यहाँ से next कर देंगे. फिर यहाँ पे हमें चूज करनी है फ्रेमवर्क. विच फ्रेमवर्क वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस कंसोल एप्लीकेशन, आवर फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन. उसके लिए हम लोग कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शंस दिखा रही है, स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट .NET 7.0 एंड .NET 6.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट. तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी क्लिक था, मैंने उसी को चूज करा है. और यहाँ पे डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट. अब ये क्या है टॉप लेवल स्टेटमेंट, हम लोग क्या है, तो सबसे पहले इसको टिक करके देखते हैं क्या खुलता है. सी, अभी हमने ये ऑप्शन को टिक करा हुआ है, मतलब हम लोग टॉप लेवल स्टेटमेंट को यूज नहीं कर रहे. डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट. तो पहला केस हम लोग टिक करके देखते हैं, फिर से वापस से नया से बनाएंगे. सेकेंड टाइम हम लोग टिक नहीं करेंगे. नहीं, सबसे पहले इसको यूज करके देखते हैं. सी हियर, हमने यूज कर रखा है .NET 6.0 फ्रेमवर्क में टॉप लेवल स्टेटमेंट. लेट्स सी गाइस, टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज करने के बाद क्या होता है. सेव चेंजेस, यस. हियर सी, हमारा विंडो कुछ ऐसा खुला. अभी तक हमने देख रखा है कि ऐसे जस्ट राइट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इस टाइप का जो स्टेटमेंट है, जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, जो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हम लोग पाइथन में यूज करते हैं. जनरली इन जनरल हम लोग ऐसे ही पाइथन में लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और वो प्रिंट हो जाती है. बट जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा है, उसमें एक मेन मेथड होता है. उस मेन मेथड के अंदर हम लोग system.out.println करके एक सिंटेक्स पूरा लिखते हैं,
और उसके अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड डालते हैं। उससे पहले क्लास के नेम्स होते हैं, क्लास के नेम के अंदर मेन मेथड्स होते हैं, मेन मेथड के दो करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं। सी शार्प भी सेम है जावा, बट हियर हम लोगों ने चूज नहीं करा था। मतलब हम लोग यहाँ पे टॉप लेवल स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। अब टॉप लेवल स्टेटमेंट क्या करती है, इस चीज को रैप अप कर देती है। जो हमने कोड लिख रखा है वो ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंटेड कोड्स होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। हम लोग जनरली कोड लिख के रन करा सकते हैं। पर यहाँ पे दिक्कतें तब आती हैं कि हम लोगों को जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, तभी जब इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी यूज करना होता है, तभी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अभी मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये इजीली हमें हेलो वर्ल्ड टाइप करके दे देगा, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। This is also a correct way, but we are not going to learn like this. So हम लोग क्या करने वाले हैं, इस program.cs को हम लोग एक और क्लास बनाने वाले हैं। पहले तो इस program.cs को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसमें टॉप लेवल स्टेटमेंट का यूज कर रखा है हमने, जो हमें नहीं चाहिए। अब नया क्लास बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक तो फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, ऐसे करके यहाँ आओ। जो तुम्हारा ये है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, जो हमने अपना फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन बनाया है, जो सॉल्यूशन है, उस पर राइट क्लिक करो, ऐड पे आओ, और तुम्हें यहीं पे दिख जाएंगी क्लास, या न्यू आइटम पे आओ। न्यू आइटम पे आके यहाँ से सेलेक्ट कर लो क्लास। क्लास का नाम अभी हम लोग रहने देते हैं क्लास 1। तुम लोग चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जबकि हमारे पास एक भी क्लास नहीं है, फिर भी हम लोग पहले क्लास का नाम रखते हैं क्लास 2। सो ऐड। अब यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा, इसके अंदर भी हमारे पास मेन मेथड नहीं है। तो मेन मेथड हमारा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको, या हम लोग खुद भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ये आ गया हमारा मेन मेथड। सी, अब तुम लोग नोटिस करना, मैंने ये डाला है, ये वाला मैंने खुद से डाला है। तुम लोग भी डाल सकते हो, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू, ये करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। मेन का एम कैपिटल हम लोगों ने लिखा है, स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीजें तुम लोग करते करते सीख जाओगे। बट सिंस दिस इज द फर्स्ट डे, लेट्स डोंट ओवर थिंक। अब हम लोग देखेंगे क्या है ये व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स, क्या है ये यूजिंग स्टेटमेंट, क्या है ये सिस्टम डॉट लिंक, सिस्टम डॉट टेक्स्ट, ये क्या है ये सारी चीजें। तो चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यूजिंग सिस्टम में। अब यूजिंग सिस्टम जो ये है, जो जनरली देख रहे हो, ये है हमारे इतने सारे यूजिंग सिस्टम जो दिख रहे हैं, ये है क्या, इसका ये मतलब होता है कि हम लोग जो है सिस्टम नेम स्पेस से क्लास को यूज कर रहे हैं। सिस्टम नेम स्पेस से एक सिस्टम प्री डिफाइंड नेम स्पेस होती है सी शार्प में, जिसके अंदर हम लोग क्लास को यूज कर रहे हैं। फिर आता है नेम स्पेस। अब ये जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस जनरली हम लोग, ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग अपने क्लास को डाल के रखते हैं। दिस इज जनरली अ कंटेनर इन विच we keep our class, or it is used to organize our code. It is a container for class and other namespaces। ठीक है, ये कंटेनर है। जैसे देखो ये हमारे नेम स्पेस का नाम है एफ कंसोल ऐप, तो तुम लोग यहाँ पे देखो एफ कंसोल ऐप, इस तरफ राइट साइड, तो ये है हमारा नेम स्पेस। नेम स्पेस, अब इस नेम स्पेस के अंदर हमारे क्लास को हमने रख रखा है, और जितने भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होंगी एक कंसोल एप्लीकेशन के लिए और हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे हम लोग इस नेम स्पेस के अंदर रखेंगे ऑर्गेनाइज करके। जैसे डिपेंडेंसी, अब बहुत सारे डिपेंडेंसी होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं जो हमें, जिनके कॉम्बिनेशन से ही हमारा प्रोजेक्ट रन करता है, तो वो सब किसके अंदर आ रहा है, ये है सबके पापा नेम स्पेस। सो
अब तुम लोग अगर कोड से समझो, सी हेयर नेम स्पेस स्टार्ट, ये रहा नेम स्पेस का कर्ली ब्रेसेस। अब ये नेम स्पेस खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ। नेम स्पेस स्टार्ट हो रहा है इस कर्ली ब्रेसेस से और खत्म हो रहा है इस वाले कर्ली ब्रेसेस पे। तो हमारी जितनी भी चीजें हैं वो इसके अंदर है। हमारे पास जितने भी कोड है वो नेम स्पेस के अंदर है, बाहर नहीं है। तो नेम स्पेस इज अ कंटेनर ऑफ क्लास। तो यहाँ पे क्लास में इंटरनल लिखा हुआ है, इसको हम लोग पब्लिक कर देंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्यों पब्लिक कर रखा है हमने। थर्ड थिंग इज नेम यूजिंग कीवर्ड समझ में आ गया, नेम स्पेस समझ में आ गया। व्हाट इज क्लास, क्लास क्या है। क्लास इज नथिंग बट अ कंटेनर ऑफ डेटा एंड मेथड, ये भी एक कंटेनर है। देखो ये हो गए किचन में हम लोग, मम्मी लोग करती है किचन में, एक बड़ा बर्तन रखती है, उसके अंदर छोटे बर्तन, उसके अंदर छोटे बर्तन, वही है। ये है हमारा सबसे बड़ा कंटेनर जिसके अंदर क्लास को हम लोग रख दिए। और ये हमारा छोटा छोटा बर्तन लाइक कटोरे, ग्लास, ये सबको हम लोग रख दिए इस वाले के अंदर। थिंक लाइक दिस। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा बड़ा बर्तन, बड़ा कंटेनर, उसके अंदर इसको रखा और इस कंटेनर के अंदर हम लोग छोटे छोटे कंटेनर को रख रहे हैं। सो क्लास इज ऑल्सो अ कंटेनर ऑफ मेथड, प्रॉपर्टी एंड अनदर फंक्शनैलिटीज जो कि क्लास के अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लास के नीचे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे है मेन मेथड जो स्टार्ट हो रही है इस कर्ली ब्रेसेस से और खत्म हो रही है इस पे। तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं कि console CW टैप टैप, एक शॉर्टकट है। जैसे देखो सी शार्प में हम लोग कोई चीज को प्रिंट कराते हैं तो हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, इसे हमें प्रिंट करानी है। तो ए है हमारा सिंटेक्स, इसके अंदर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी डालेंगे उसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। लाइक जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पाइथन में प्रिंट, उसी तरह सी शार्प में कंसोल डॉट राइट लाइन, उसी तरह जावा स्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ये कंसोल क्या है, इट इज अ क्लास, इट इज अ क्लास ऑफ सिस्टम नेम स्पेस। ये क्लास है, कंसोल क्या है, क्लास है। कहाँ का क्लास है, सिस्टम नेम स्पेस का। ठीक है। व्हाट इज राइट लाइन, राइट लाइन इज अ मेथड दैट यूज टू आउटपुट और प्रिंट टेक्स्ट। राइट लाइन इज अ मेथड दैट यूज टू प्रिंट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। और अगर तुम यहाँ से ऊपर से इस सिस्टम को हटा देते हो यूजिंग सिस्टम, लेट्स ट्राई वन थिंग, मैंने भी नहीं करा है। तो यहाँ पे अगर हम वेट, जो मैंने हटाया वो वापस डाल के मैं यहाँ पे सब कुछ को हटा लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमें लिखने पड़ेंगे ना सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, अगर हम लोग सिस्टम नेम स्पेस को ऊपर से हटा देते हैं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सिस्टम डॉट, डॉट है कॉलिंग ऑपरेटर, डॉट के हेल्प से हम थे सिस्टम नेम स्पेस में, फिर डॉट लगा के किसको कॉल किए, कंसोल को, कंसोल क्लास को, फिर डॉट लगा के कंसोल क्लास के अंदर एक मेथड था राइट लाइन उसको कॉल किए और फिर उस मेथड को बोले कि तुम इस चीज को प्रिंट कराओ। ठीक है, लाइक दिस इज द बॉस, this is the second boss, junior boss, and this is the staff that is going to do all those things। ठीक है, तो यही है। अब चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। हमारा पहला कंसोल एप्लीकेशन, एक तरीका हुआ ये देखो हेलो वर्ल्ड, हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। एक तरीका हुआ तुम लोग यहाँ पे आके रन कर सकते हो, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। एक है कि तुम लोग यहाँ पे आके रन कर सकते हो, सेम थिंग है, ये हो गया। फिर एक तुम यहाँ फर्स्ट कोई भी तुम्हें बताएंगे ना तो वो ऐसे बोलेंगे बिल्ड सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन बिल्ड कर लेते हैं। दैट इज द गुड प्रोसेस, बट एक बार तुम लोग फ्लुएंट हो जाओगे इस लैंग्वेज में तो हर बार बिल्ड करने का जरूरत है नहीं। सॉल्यूशन बिल्ड करने में हमें आया 1 सक्सीडेड 0 फेल्ड, ये लाइन आया कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको रन करा सकते हैं। तो इसी में जाके इसमें आगे स्टार्ट विदाउट डीबगिंग करेंगे और हम लोग रन करा लेंगे।
अब देखते हैं, ये रहा हमारा पहला सी शार्प का कंसोल एप्लीकेशन। चलो इसको हम लोग कमेंट आउट करके देखते हैं। डेटा टाइप इन सी शार्प। अब मैं यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे वो सारे डेटा टाइप का जिक्र करूंगा जो सी शार्प में बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, जगह जगह यूज होते हैं, और बाकी सारे कोडिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट वो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम जावा से उठ के सी शार्प में स्विच कर रहे हो तो ये चीजें तुम्हें समझने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। फर्स्ट है इंटीजर। इंटीजर लाइक व्हाट इज दिस, वाई। इंटीजर पहला क्या है, डेटा टाइप इंटीजर। इंटीजर में जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, हम लोग यहाँ पे कोई भी होल नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 5, 54, वेट 54, ये हम लोग होल नंबर कर सकते हैं। और उसके बाद उसी होल नंबर को उसी के ऊपर बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। लेट से मेरे पास दो नंबर है, एक इंटीजर नम वन, ये हम लोग नाम रखते हैं इसका नम वन, और मेरे पास एक दूसरा है इंटीजर डेटा टाइप का ही नम टू, जिसके अंदर देते हैं 43। और हमको चाहिए एक नम थ्री, हमको चाहिए इन दोनों का सम, जिसको हम नम थ्री में स्टोर करा के नम थ्री को प्रिंट कराने वाले हैं, नम वन प्लस नम टू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नम थ्री कर देंगे और इसको सीधा डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं रन। सी 97। अब हम लोग इस चीज को कैसे किए एक वापस से देखते हैं, बट इसको थोड़े से सजा के, द सम ऑफ नंबर वन प्लस नंबर टू इज, और इधर हम लोग कर देते हैं इसको कॉनकैट, और अब रन कराते हैं। द सम ऑफ नंबर वन प्लस नंबर टू इज 97। ठीक है, अब हमने कैसे करा वापस से देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने ले लिया एक पहला वेरिएबल को जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, जिसका नाम हमने रखा नंबर वन। ठीक है, कंफ्यूजिंग है तो इसको रख देते हैं ए। ठीक है, ए का वैल्यू डाला 54। फिर हम दूसरा वैल्यू लिए इंटीजर डेटा टाइप का, जिसका नाम दे देते हैं बी। बी, ओके। अब हमको चाहिए इनका सम। एक तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले हम लोग ये करते हैं, फिर दूसरा प्रोसेस बताते हैं। हम लोग क्या किए, सी के अंदर ए प्लस बी को स्टोर कर दिए कि हमारा जो ए होगा वो ये 54 है, यहाँ से उठ के ए के अंदर स्टोर है, ये यहाँ आ जाएगा, और ये बी जो है इसका वैल्यू इस जगह आ जाएगा। और फिर 54 प्लस 43 जो होगा सम होके उठ के इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा। फिर हम लोग सी को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे और फिर हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। बट एक और तरीका है कि क्यों स्टोर कराना, चल नहीं कराते स्टोर, नहीं चाहिए मेरे को सी, मेरे को डायरेक्टली चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मेरे को ए प्लस बी का वैल्यू आ जाए, तो ए प्लस बी डायरेक्टली यहीं डाल देते हैं। ए प्लस बी हमारा जो राइट लाइन स्टेटमेंट है उसी में डाल देते हैं। ये देखो कैसे आया। ये इस चीज को मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सम नहीं किया है, अगर तुम गौर से देखो ये उस चीज को कॉन्कैट कर दिया है, 54 प्लस 43 कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये देखो क्यों किया है ऐसा, क्योंकि हम लोग आगे स्ट्रिंग डाल के रखे हैं, तो सबसे पहले ये आएगा एग्जीक्यूट, ये लाइन बाय लाइन होता है, स्किप कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे आया मेरा मेन मेथड में आया, फिर इसको देखा कि अच्छा ए का वैल्यू 54 है, फिर बी को देखा अच्छा इसका वैल्यू 43 है, फिर यहाँ देखा कि अच्छा ये सिस्टम नेम स्पेस का ये कंसोल क्लास है। फिर आगे गया नेक्स्ट स्टेप, अच्छा ये मेथड है कंसोल क्लास का। फिर देखा ओ अच्छा इसके अंदर स्ट्रिंग है, तो ये इस चीज को स्ट्रिंग डाले तो ये इसको भी स्ट्रिंग समझ लिया, इसको भी स्ट्रिंग समझ लिया, और सबको एक साथ कॉन्कैट कर दिया। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें लेट ट्राई वन थिंग, ये भी जस्ट ट्राइंग। यहाँ पे हम लोग करते हैं ये चीज, ये देखो हमें सम आ रही है, कुछ करा हमने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, बस जो आगे का स्ट्रिंग था वो हमने हटा दिया, वो हमने क्या किया हटा दिया।
तो हमारे पास देखो अभी क्या आ रहा है कि 54 और 43 को मैंने बोला था प्लस करो, बट ये क्या किया, 54 और 43 को एज इट इज लिख दिया है। प्लस इसने करा ही नहीं क्योंकि आगे इसके स्ट्रिंग वैल्यू था, स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू था, तो ये इन दोनों को भी स्ट्रिंग ही समझ लिया, जबकि ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का है। तो हाँ, इसीलिए ये कर दिया। फिर जब हम इस चीज को स्ट्रिंग को हटा दे रहे हैं तो फिर ये जो इसको करना काम था ये कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है अपना पर्पस। 54 प्लस 43 इज इक्वल टू, क्या कर दिया इसने, 97 आउटपुट दे दिया। बट अच्छा नहीं लग रहा ना, ये पता नहीं चल रहा ये क्या है, 97 क्या है, नहीं पता चल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग इसको ये करके इस चीज को ब्रैकेट में डाल के देखते हैं क्या होता है। देखो आ गया, द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 97। अभी ये डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि व्हाट इज दिस मच, फ्रॉम दिस टू दिस मच इज स्ट्रिंग एंड दिस मच इज इंटीजर। तो अगर तुमको बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ करने हैं तो तुम एक्स्ट्रा ब्रैकेट का यूज किया करो। सबसे पहले वो इनर ब्रैकेट को करेगा, फिर आउटर ब्रैकेट पे आएगा। तो इसने क्या किया, सबसे पहले ए का वैल्यू 54 डाला, बी का वैल्यू 43 डाला, फिर दोनों को ऐड किया, तब जाके ये बाहर के ब्रैकेट में आया, इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में बाद में आया। पहले अंदर वाला जो ये ब्रैकेट है हमारा, इस ब्रैकेट का इसने क्रियाकर्म किया, फिर आया बाहर वाले ब्रैकेट में। तो इतना समझ में आ गया। इंटीजर डेटा टाइप में डाउट नहीं होना चाहिए, एंड इन केस अगर कोई डाउट है, यहाँ पे बहुत सारे चीज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, सिंपल सा बात है। यहाँ पे तुम डायरेक्टली मैं प्रिंट कराए जा रहा हूँ, बट तुमको एक और प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। एक दूसरा वेरिएबल लो, उसके अंदर इसको स्टोर करा लो। c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, c को प्रिंट करा लेते हैं। अब देखते हैं 54 को 43 से डिवाइड करने पे क्या आता है, आता है 1। बट 1 तो नहीं आता, इतना तो हमने भी पढ़ा है कि 1 नहीं आता। यहाँ पे ये 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने लिया है इंटीजर डेटा टाइप, और इंटीजर डेटा टाइप कभी भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करता, ओमिट कर देता है। तो 41 बन जा 41, और 54 में से 43 बन जा 43, 54 में से 43 को माइनस किया, फिर जो बचा, फिर जो पॉइंट लगा के जो आगे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई करके डिवीजन हुआ है, टेबल पढ़ के पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो वो सिर्फ पहला लेगा, जो जितना उतना ही लेगा जितना पॉइंट के बाहर है, वो 1 ही लेगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे कर दूं डबल, अब ये दूसरा डेटा टाइप देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डबल, ठीक है, डबल यूज करते हैं, और ये भी यूज करते हैं डबल, ठीक है। अब डबल करके यहाँ पे सम को हटा के डिव कर देते हैं, डिवीजन, और इसको भी ये कर देते हैं। तो चलो अब डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। सी, अब आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि जो इंटीजर है वो सिर्फ इतने पार्ट को, सॉरी, इतने पार्ट को वो स्टोर करेगा, वो डेसिमल को स्टोर नहीं करा सकता। उसी के सॉल्यूशन में दूसरा डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे डबल, जो डेसिमल को, होल नंबर को, सबको स्टोर करा सकता है। तो वो देखो वो पूरा ही स्टोर कराया है। ये था हमारा दूसरा डेटा टाइप। अब हम लोग एक और डेटा टाइप का यूज करके देखते हैं, स्टोर कराने के लिए डेसिमल को, और यूज करके देखते हैं फ्लोट लेके। चलो, एक और डेटा टाइप होता है फ्लोट। रुको वेट, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। पहले हम लोग यूज किए फर्स्ट नंबर पे इंट, दूसरे पे यूज करके देखे हैं सेकंड पे डबल, अब हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये जो है, ये यूज इंट हम लोगों ने यूज करा क्या चीज के लिए, होल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए। इसमें डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते,
डबल में डेसिमल, होल, जो चाहे वो स्टोर कर सकते हैं, स्पेलिंग। अभी हम लोग तीसरा यूज कर रहे हैं, फ्लोट। ये भी डेसिमल वैल्यू के लिए है, और जब भी फ्लोट का यूज करेंगे लास्ट में हम लोग कैपिटल या स्मॉल एफ जरूर लगा देंगे, ताकि हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो कि ये डबल तो नहीं है, क्योंकि ये भी डेसिमल स्टोर कर सकता है और ये भी डेसिमल स्टोर कर सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये डबल नहीं है, ये फ्लोट ही है। तो हम लोग किसी भी नंबर के लास्ट में एफ लगा देंगे। तो करके देखते हैं अभी। फ्लोट ए 54, फ्लोट बी 43, एंड हियर फ्लोट सी a डिवाइडेड बाय b। अब तुम लोग देखोगे इसका आउटपुट आ रहा है, बट नोटिस करना, यहाँ पे नोटिस करना कि ये कितने डिजिट का है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। तुम लोगों ने नोटिस करा पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। अब इसको वापस से डबल करो, वापस से डबल करते हैं, तो देखते हैं कि पॉइंट के बाद 6 ही डिजिट है या आगे भी है कुछ। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, मोर देन 6। इट मीन्स double is the biggest, double have biggest storage. It can store, ये जो डेटा का कंटेनर है, ये जो डेटा का टाइप है ना, ये बहुत ही बड़ा बड़ा डेटा स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर largest value, like largest value compared to other data type। तो इसका एक बेनिफिट है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टोर कर सकता है, बट इसका एक नुकसान भी है। ये बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेता है। सो प्रेफर हम लोग ये करेंगे कि हम लोग डबल का यूज़ तभी करें जब हमें हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है, इसीलिए हम लोग उसके कंपैरिजन में फ्लोट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने देख लिया, इसको वापस से करते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, इसमें एक शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, उसको भी देख लेते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग में हम लोग क्या लगाते हैं, लॉन्ग में लास्ट में जैसे इसमें एफ लगाते थे ना, उसमें एल लगा देंगे लॉन्ग में। ये भी होल नंबर के लिए होता है, ये इंटीजर जैसा है बट इंटीजर से ज़्यादा ये स्टोर कर सकता है। इसके लास्ट में कैपिटल एल नहीं तो स्मॉल एल। लॉन्ग ए, सॉरी बी को क्यों मिटा दिया मैंने, लॉन्ग बी, एंड हेयर लॉन्ग सी। और हम लोग इसको करने वाले हैं डिवाइड, सो लेट्स सी 1, क्योंकि ये भी इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर, मतलब ये भी होल नंबर को ही स्टोर करता है, ये डेसिमल को सपोर्ट नहीं करता। तो जब हमने इंट करा था तो भी आ रहा था आउटपुट हमारा 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, दैट इज कैरेक्टर। चलो इसको हटा के देखते हैं। कैर कैर ए इज इक्वल टू ए, लेट्स सपोज कैर नेम, ये क्या हो रहा है, कैर नेम इज इक्वल टू ए। अब देखो कैरेक्टर, सिंगल सिंगल वैल्यू, सिंगल अल्फाबेट स्टोर करने के लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करते हैं, बहुत ही बेसिक है। हम लोगों ने देखा भी है कैरेक्टर डेटा टाइप और भी कोडिंग लैंग्वेजेस में। तो सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के हम लोग कैरेक्टर का यूज करते हैं। डेटा टाइप एग्जांपल, तो इसको रन करके देखेंगे, वहां पे आ जाएगा हमारा ए, सी, ए की जगह कुछ भी डाल सकते हो, बी सी डी कुछ भी वो हो सकता है। अब यहाँ पे लेट सपोज कैरेक्टर सिंगल अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, बट क्या होगा यहाँ पे अगर सी लिख दें, बी लिख दें, ए लिख दें, देखो यहाँ पे एक रेड लाइन आ गया, ये देखो टू मेनी कैरेक्टर इन अ कैरेक्टर लिटरल। अब जो ये है इसके अंदर ये बोल रहा है कि भाई ये क्या है, ये तुम लोग जो बहुत सारे अल्फाबेट का यूज कर रहे हो, ये कैरेक्टर तो रहा ही नहीं, ये तो वर्ड बन गया। जैसे यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4, तो हम लोग ये कर देते हैं ना डॉल, दिस इज नॉट अ कैरेक्टर, दिस इज अ वर्ड, डॉल।
सो इसीलिए कैरेक्टर सिंगल, देख यहाँ रेड लाइन नहीं है, अभी भी रेड लाइन नहीं था जो कि आ गया है, तो सिंगल में करते हैं। अब अगर हमें क्या हो कि अगर हमें सिंगल नहीं, मेरे को चाहिए वर्ड्स, सेंटेंसेस, तो वहां यूज करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, इस चीज को ध्यान से देखो। तो तुम्हें दिख जाएंगे कि हम लोगों ने सिंगल कोट में यूज कर रखा है। कैर कर देता हूँ वापस से। कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट में लिखते हैं जी। ये देखो, एक कोट इधर एक कोट इधर, बट वही, तो इधर हम लोग ये भी कर देते हैं मेंशन कि ये डेटा टाइप भी हमने देख लिया। और ये इसको हमेशा हम लोग इसमें रखते हैं सिंगल कोट में। सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे डेटा टाइप पे, स्ट्रिंग। इसको हम लोग रखते हैं डबल कोट में, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस हो चाहे वो वर्ड्स हो, कुछ भी हो हम लोग डाल सकते हैं। तो चलो यूज करके देखते हैं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इज इक्वल टू व्हाट, लेट्स से रोहित। सी, अब यहाँ पे हम लोग नेम को प्रिंट करेंगे, तो वो हमारा प्रिंट होगा रोहित। बट यहाँ पे ये हमने एक वर्ड डाला, तो इसका कैपेसिटी कितना है, चलो टाइप करते जाते हैं। रेड लाइन नहीं आया है अब तक। अभी भी नहीं आया है। लेट्स सी एक स्ट्रिंग का कितना ही कैपेसिटी होता है, अभी भी रेड लाइन हमारा नहीं आया है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने कितने कैरेक्टर का यूज कर रखा है, 121। इस जगह पे देखो 121 कैरेक्टर का यूज कर रखा है हमने। अभी और करते हैं थोड़ा, तो अभी भी हमारा नहीं आया है। इसका बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा है। तो चलो हम लोग इसको यहीं पे, हमने देखा स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब एक मेरा बेस्ट डेटा टाइप आ रहा है, वो है बूलियन। बूल। अब बूल डेटा टाइप में हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ देखते हैं, वो ये है कि फर्स्ट ये या तो ये ट्रू होगा या नहीं तो ये फॉल्स होगा। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं बता सकता। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बूल, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो होता है फॉल्स, और इसको कोई भी कोट में मत लिखना, ये ऐसे ही लिखाता है बूलियन। इसको क्या हो गया यार, द नेम फॉल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, फॉल्स का स्पेलिंग गलत है यार, हद है। बूल फॉल्स, तो मैंने कोई डबल कोट में नहीं लिखा, और यहाँ पे अगर हम नेम को प्रिंट करेंगे तो ये ऑब्वियसली फॉल्स प्रिंट करेगा। बट हियर देखो, यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, बट आउटपुट देखो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और ये इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फॉल्स, इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, उसको तुम ट्रू कर सकते हो, पर ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और ट्रू भी हमारा टी कैपिटल में है, जबकि हमने डाला स्मॉल में था। तो ये हो गया तुम्हारा डेटा टाइप। अब आ जाता है टाइप कास्टिंग। अब आ जाता है तुम्हारा टाइप कास्टिंग। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टाइप कास्टिंग, आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो कमेंट में बताना। आई विल स्लो डाउन, और एक एक लाइन को मैं डिटेल में बच्चों की तरह समझाऊंगा, डोंट वरी। सो टाइप कास्टिंग, ये टाइप कास्टिंग क्या होता है, फ्रॉम नेम वी कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप वी आर गोइंग टू कास्ट समथिंग, चेंज इट, वी आर गोइंग टू मोल्ड इट इन अनदर फॉर्म। हम लोग इसको एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करेंगे। तो ये होता है दो टाइप का। दूसरे कोडिंग लैंग्वेज में भी टाइप कास्टिंग दो ही टाइप के होते हैं, इम्प्लीसिट और एक दूसरा होता है एक्सप्लीसिट। इम्प्लीसिट ऑटोमेटिकली हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता इम्प्लीसिट के लिए। एक्सप्लिसिट हम लोग करते हैं जबरदस्ती। अब एग्जाम्पल, मेरे पास एक बहुत बड़ा सा बर्तन है,
मेरे पास एक बहुत बड़ा सा बर्तन है, लेट सपोज आई हैव अ बकेट, एक बाल्टी है मेरे पास। उस बाल्टी में मैंने एक छोटा सा बोल डाल दिया, कटोरा, एक छोटा सा बोल डाल दिया। अब क्या वो बोल डालने के लिए मेरे को कोई और मेहनत करनी पड़ी, या बाल्टी का साइज चेंज करना पड़ा, या बाल्टी का कैपेसिटी वॉल्यूम चेंज करना पड़ा? एनीथिंग, नथिंग। बाल्टी थी, बोल डाल दिया, बोल अंदर चला गया, हमारा कटोरा हमारे बाल्टी के अंदर चला गया। दैट इज इम्प्लिसिट, कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट क्योंकि बाल्टी का साइज बहुत ज्यादा होता है, कटोरे का साइज छोटा होता है, तो वो छोटा चीज बड़े चीज के अंदर जा ही सकता है। ठीक है, अभी एक्सप्लिसिट का देखते हैं। इसके लिए हमें चेंज करने पड़ेंगे। सपोज अगर मैंने बोला कि तेरे पास बाटी है, कटोरा है, बोल है, उसके अंदर तुम बाल्टी को डालो, तुम्हारे बकेट को डालो बोल के अंदर, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए तुम्हें उस बाटी के अंदर, तुम्हें बाल्टी को तुम डालोगे तो तुम्हारा डेटा लॉस होगा। तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास 10 लीटर का एक बाल्टी है, वो खाली है, तुम्हारे पास एक कटोरा है जिसमें 100 ml पानी है, मैंने बोला इस पानी को ट्रांसफर करो, ये तुम्हारे कटोरे के अंदर जितना भी डेटा है, जितना भी तुम्हारे पास पानी है, उस बाल्टी के अंदर डाल दो ना, वो उसमें बहुत स्पेस है, अट जाएगा। तो तुम अपना 100 ml पानी वो 10 लीटर के बाल्टी में इजिली डाल सकते हो। तुम्हारा कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, जो पानी तुम्हारे पास कटोरे में था वही पानी तुम्हारे पास अब बाल्टी में है। दैट इज इम्प्लिसिट। बट अगर समवन सेज दैट कि तुम्हारे पास 10 लीटर पानी है तुम्हारे बाल्टी में, उसको तुम अपने छोटे से कटोरे में, तुम्हारे बकेट में 10 लीटर वाटर है, उसको तुम अपने बोल में डालो, तो तुम 10 लीटर उसमें एडजस्ट कैसे करोगे? तुम मैक्स मैक्स टू मैक्स 1 लीटर, सपोज तुम्हारा बोल 1 लीटर का है तो मैक्स टू मैक्स 1 लीटर तुम उस कटोरे में डालोगे, बाकी के 9 लीटर तो जमीन पे गिर जाएंगे ना, डेटा का लॉस होगा। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डेटा का लॉस हो जाता है, जिससे जिसको हम लोग बचा भी सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे कैसे बचाते हैं। फर्स्ट, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सबसे छोटा डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सपोज इसको हम कमेंट करके लिखते हैं, अगर हम लोग इम्प्लिसिट में देखते हैं ना, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होता है, यहाँ पे छोटे चीज बड़े चीज के अंदर इजीली एडजस्ट हो जा रहा है। तो कैरेक्टर को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? इंटीजर में। कैरेक्टर से इंटीजर बड़ा होता है, और हमने देखा था कि इंटीजर से ज्यादा बड़ा क्या था? हमारा लॉन्ग था। लॉन्ग से ज्यादा बड़ा क्या होता है? हमारा फ्लोट। और हमारे पास जो सबसे बड़ा डेटा टाइप था नंबर का, वो क्या था? वो था हमारा डबल। ये हमने देखा है अब तक, इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। तो यहाँ पे इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कैर को उठा के मैं इंट में डाल सकता हूँ, इंट को उठा के मैं लॉन्ग में चेंज कर सकता हूँ, लॉन्ग से मैं फ्लोट में जा सकता हूँ, फ्लोट से मैं डबल में, बहुत इजीली। एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे। अब आ जाते हैं एक्सप्लिसिट में। एक्सप्लिसिट में जस्ट ऑपोजिट, तुम इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, उल्टा। हम लोग डबल से स्टार्ट किए, फ्लोट पे आए, फ्लोट से करके हम लोग वापस किस में आए? लॉन्ग में। फिर हम लोग आ रहे हैं इंट में। दिस इज नॉट पॉसिबल नेचुरली। इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा। हम लोग इंटीजर को किस में स्टोर करें? कैरेक्टर में। सी, यहाँ से हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे थे, हो जा रहा था, यहाँ से बड़े से छोटे में आ रहे हैं। दिस इज not going to happen. This one explicit not going to happen. We have to do it explicitly, अलग से करने होंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे? अब चलो पहले इम्प्लिसिट का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कैरेक्टर को, कैरेक्टर को ले लेते हैं। नहीं, सबसे पहले नंबर नंबर पे चलता है। इंट a इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल है a नाम का, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाला 2। अब इसको क्या करेंगे ना, हम एक डबल करके वैल्यू लेंगे, नहीं चलो लॉन्ग करके वैल्यू लेते हैं। लॉन्ग
बी, उसके अंदर हम ए को डाल दिए, हो गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने पड़े, हो गए। अब हम लोग लेते हैं फ्लोट टाइप का, फ्लोट सी, उसके अंदर हमने बी को डाल दिया, ये भी हो गया। अब लेते हैं डबल, डबल डी इज इक्वल टू ए गया बी में, ए गया बी में, बी गया सी में, और सी गया डी में। अब हम लोग प्रिंट करेंगे सी डब्ल्यू डबल टैप डी को, देखो आउटपुट क्या आता है, ऑब्वियसली टू आएगा, टू। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इधर से उधर उधर से उधर कर रखा है। इंटीजर को सबसे पहले लॉन्ग के अंदर डाल दिया, लॉन्ग को फ्लोट के अंदर डाल दिया, फ्लोट को डबल के अंदर, और फिर लास्ट में डबल को प्रिंट करा दिया। और ये इजीली एक दूसरे के अंदर ये एडजस्ट हो भी गए, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम लोग, साइज कंपेयर टू प्रीवियस वन ज़्यादा होते जा रहा है। अब इसको एक्सप्लिसिट में करके देखते हैं एक बार, एक्सप्लिसिट में क्या होता है। एक्सप्लिसिट में हम लोग करके देखते हैं, मेरे पास एक डबल है, डबल से स्टार्ट करते हैं, डबल ए इज इक्वल टू 8.234, ठीक है। तो चलो एक लेते हैं हम लोग, अब इसको फ्लोट में तो डाल ही सकते हैं, क्योंकि फ्लोट भी हमारा क्या करता है, डेसिमल वैल्यू लेता है। चलो 2349, ये है मेरे पास एक डबल वैल्यू, ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा एक डबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू है। तो चलो फ्लोट लेते हैं, इसको और सीक्वेंस वाइज बना देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा मेरा एक वैल्यू। अब एक फ्लोट लेते हैं वेरिएबल बी करके, उसके अंदर हम लोग ए को डाल देते हैं, डी करके लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डी हमने लिख रखा है ना, तो वापस से क्यों लिखना डी। उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं ए को, ए को। अब आउटपुट देखो क्या आता है, ए फ्लोट, यहाँ देखो, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट, ये नहीं कर रहा है कन्वर्ट। आर यू मिसिंग अ कास्ट, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो इसको, वाई कैन नॉट आई हाईलाइट दिस, इसका साइज यही रहने वाला है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू फ्लोट, एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट, आर यू मिसिंग अ कास्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसके इसको फ्लोट बनाएंगे, ये बन गया हमारा फ्लोट। हमें इसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ा है कि भाई ये डबल था और इसको कन्वर्ट कर दो फ्लोट में, क्योंकि मेरे को जो मेरा ये वेरिएबल है जो पहले डबल था उसको फ्लोट में कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको फ्लोट के दूसरे वेरिएबल में स्टोर करूँ। और अब प्रिंट करा के देखो, 1 2 3 4 5 7 है, बट तुम 6 समझो क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा। वेट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यहाँ पे, अच्छा ये इस चीज़ को राउंड ऑफ कर लिया है, 6 को 7 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। समझ में आया टाइप कास्टिंग, ईजी है, हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि इस चीज़ को कास्ट कर दो। अब इसी फ्लोट को, सपोज इसी फ्लोट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इंट के अंदर स्टोर कराएंगे, इंट सी, इंट सी के अंदर हम लोग स्टोर करा रहे हैं डी को, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट। इसको हम लोग बताएंगे कि मेरा जो ये डी है जो कि पहले फ्लोट हुआ करता था, इस डी को भाई तू इंट बना दे, क्योंकि इस डी को मैं सी में स्टोर करने वाला हूँ और सी मेरा इंटीजर है। और अब सी को प्रिंट कराएंगे, तो अब देखना जो आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा था वही आंसर हमारा होल नंबर में आ गया, क्योंकि इंटीजर तो डेसिमल को सपोर्ट ही नहीं करता है। ये था हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, समझ में आया।
अब एक चीज और देखते हैं, मेथड्स ऑफ टाइप कास्टिंग। कुछ कुछ कन्वर्जन मेथड्स होते हैं, जैसे कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू इंट 32, कन्वर्ट टू इंट 64। जैसे तुमको एक सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10, और हमने बोला ना कि मेरा जो ये ए है ना, इस चीज को ना तुम कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में। मेरे ए को जो कि इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो इसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू, यहाँ पे बहुत सारा आ गया ये देखो, टू बूल, टू टाइप, टू डेसिमल, टू हेक्स स्ट्रिंग। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो टी कैपिटल होता है, तुम जैसे यहाँ पे टू डालोगे ना तो तुम्हारा पास खुद ही आ जाएगा टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में हमने इंटीजर को डाल दो, हो गया। अब जो तुम्हारा ये 10 है, यहाँ पे ए डाल देते हैं, जो कि गलत देगा क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में अल्फ़ाबेट कैसे डाल सकते हैं। बट अब देखो तुम्हारे पास 10, ये दिखने में सिमिलर है बट ये सिमिलर है नहीं, ये वाला इंटीजर है, बट अभी जो हमने प्रिंट करा है इसको स्ट्रिंग, ये वाला जो है इसके अंदर अगर हम प्लस प्लस ए भी डाल दें, मेरे पास इसको ए भी डाल दें, तो भी ये कॉन्कैट कर देगा, 10 ए बना देगा इस चीज़ को, ये देखो। बट 10 में कभी ए ऐड नहीं होता, नंबर में कभी अल्फ़ाबेट ऐड नहीं होते क्यों, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है ऑलरेडी अल्फ़ाबेट में, तो स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है, तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कॉन्कैट हो सकता है। तो ये कुछ कुछ मेथड है, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, टू बूल, टू डबल, ऐसे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखो मेरे पास एक ये सेम एग्जांपल में चेंज करके दिखाते हैं। मेरे पास ये ए जो है ये क्या है, स्ट्रिंग इंटीजर है अभी, ध्यान से देखना, हमारे पास ये क्या है, इंटीजर है, बट आई वांट टू कन्वर्ट इट इन डबल, तो टू डबल, और इसके अंदर डाल दो तुम अपने इंटीजर को। आउटपुट देखना, हमारे पास वैल्यू अभी 10 है, बट आउटपुट हमारे पास जो आया 10 है। ये 10 और ये 10 में डिफरेंस ये है कि ये 10 डेसिमल वैल्यू सपोर्ट कर रहा है बट ये 10 नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा कुछ टाइप कन्वर्जन जो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोग ने अब तक क्या देखा कि व्हाट इज सी शार्प, व्हाई डू वी यूज इट। हमने नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशन बनाया, हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा, फिर हम लोग बहुत सारा डेटा टाइप देखे, और हम लोग फिर टाइप कास्टिंग देखे। तो एक और चीज़ जो बहुत ही बेसिक है, हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं। कोई भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। वी ऑल नो, हम लोगों ने बहुत बार इस चीज़ को यूज़ भी करा, कंसोल डॉट राइट लाइन। बट व्हाट इफ मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास बताने को कुछ नहीं है, मैं यूज़र से इनपुट चाहता हूँ, तो क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट सी, सजेशन में कुछ दिख रहा है, रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब क्या होगा, हमें यूजर से इनपुट लेना होगा, तो सर चलो एक अच्छा सा बनाते हैं, सी डब्ल्यू टैप टैप यहाँ पे डालते हैं, राइट योर नेम, ठीक है। अब इस चल चीज को क्या करता है, रन कराता है, राइट योर नेम। और यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोई भी नाम, सी हम लोगों ने लिख दिया नेम यहाँ पे। तो यही है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड का। नेक्स्ट है हमारा और एक चीज, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन सिर्फ स्ट्रिंग सपोर्ट करता है और कोई चीज सपोर्ट नहीं करता। अभी तक हमने कंसोल डॉट राइट लाइन जो भी देखा, जो ऊपर हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, ये भी क्या था, एक स्ट्रिंग था। अभी हम कंसोल डॉट राइट लाइन करके यहाँ पे जीरो लिख दें, तो ये क्या होगा हमारा, देखते हैं। जीरो जो आ रहा है, ये जीरो और ये जीरो में डिफरेंस ये है कि जो आउटपुट वाला जीरो है वो हमारा स्ट्रिंग है। ये देखो ये यहाँ पे 32 बिट इंटीजर है, बट वहाँ पे वो नहीं है। तो कंसोल डॉट रीड लाइन जो है वो क्या करती है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेती है यूजर से, ठीक है। यू
write your name, write your name, नेम, और जो हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई मेरा नाम 7854 है। तो इज दिस रियली पॉसिबल कि मेरा नाम 7854 है? नो, ये 7854 ये मैंने इंटीजर सोच के डाला, बट ये एज ए स्ट्रिंग इस चीज को ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, जस्ट वेट अ मिनट। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। सो एक और चीज हम लोग इसमें याद रखना, इस चीज को हमें हमेशा स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है कंसोल डॉट रीड लाइन। इम्प्लिसिटली कभी भी स्ट्रिंग इंटीजर में या किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होता, इसको एक्सप्लिसिटली कराना पड़ता है कन्वर्ट। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कराएंगे, और वो कैसे कराएंगे ना, हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं कि मान लो यहाँ पे करते हैं राइट योर एज, आई वांट एज। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एज को स्टोर कराएंगे, इंट एज इज इक्वल टू, और इस चीज को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। अ, और इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीजर में स्टोर करा लेंगे। यहाँ पे दे रहा है एरर, रीड नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे नहीं ले सकता है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ व्हाई इट इज नॉट टेकिंग, इट इज गिविंग मी एन एरर, व्हाई। यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट टू मेथड लगाना होगा, कन्वर्ट डॉट टू, एज यू नो दैट हमें लगाने होंगे। सो लेट्स ping me in the comment section why it is giving me an error, whether we have to use convert dot to methods, and how to use convert dot to method. So you have to tell me, let's leave it, मैं ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे करेंगे convert dot to int, वेट टू का टी कैपिटल होता है, टू int 32। अब टू इंट 32 हम लोग करते हैं इंटीजर को रिप्रेजेंट, इसीलिए टू इंट 32। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, माई एज इज प्लस जो भी एज उधर से आएगा वो। सी, अब यूजर जो भी एज इसमें भरेगा, डालेगा, वो एज जाके पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर वो जाके इसमें स्टोर हो जाएगा, अब फिर वो यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो लेट्स प्रिंट दिस, what is your age, like 22, print my age is 22। now this is string, wait, this is string but this is integer। so thank you guys, just go and subscribe, hit the subscribe button, and the tell me in the comment section what is left, and I'm going to upload some more videos